Hello ladies, welcome to my channel. I am Veena Malvya. So today we will learn this very beautiful earring. So yeah, let's get start the video without waste any time, and yeah, don't forget to like, share and subscribe. So for this earring, we need a one regular cardboard, rounder and metal scale. First you have to choose your favorite shape. I'm using half circle, so we need some measurements. So I'm using this metal scale. So this is the perfect for the measurement. So use only metal scale. Yeah. And just need to cut. This is the half round circle. You can use any shape, it's just up to you. So yeah, here I have a two fabric colors. So let me tell you, this is the cotton fabric. So use only cotton fabric, don't use any polyester based fabric because the finishing will be not good. उसको stick करना it's very tough. That's why I'm highly recommended you that don't use any polyester based fabric. I'm sorry. So yeah, this is the proper way to stick the fabric on the cardboard. So yeah, rest for 2-3 minutes, that's enough. So you can see this is the extra fabric. So आपको थोड़ा सा कट करना है, half inches या फिर quarter inches. So apply the glue and start to stick the fabric, start to the end, and repeat the same process for the other side. And you can see the base is ready, and these are stuff to use for decoration, and I will add some और मटेरियल. और सो मैं तो आपको पता है कोई भी शॉर्टकट आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ बिकॉज ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं. दैट्स वाई आई विल यूज़ स्विंग थ्रेड एंड निडल. सो दिस इज़ द वे हाउ टू स्टिच मटेरियल, हाउ टू स्टिच लोरियल बंच and L'Oreal pearls, and how to stitch all material on the earring. So start from the one side, take some 2, 3 or 8 to 9 L'Oreal pearl in a bunch. And we just need to stick in the edging. So this is the proper way to stitch L'Oreal in a bunch. You can see this is how this is easy. I know my tutorial is very easy. Thank you so much for your appreciation. I love your comments. Yeah, I think this is the very easy way. So for this earring you need 50 ग्राम L'Oreal pearls. ओके, सो मैंने क्वांटिटी आपके साथ शेयर कर दी है. आप 100 ग्राम्स ले सकते हैं आपकी लोकल शॉप से. एंड ऑल्सो आई विल शेयर यू द लिंक ऑफ इंस्टाग्राम दैट यू कैन शॉप फ्रॉम देयर. This is the very good vendor. They have available all jewelry raw material you can purchase very safe. And yeah, this page is very reputed and ये आपके साथ कोई cheat नहीं करेंगे. So don't worry about that. So this is the way that how I'm decorating this stud, because ये थोड़ा सा बहुत simple लग रहा था और उसका जो नीचे वाला part है तो वो थोड़ा सा बहुत हैवी है. यू कैन सी द क्वांटिटी ऑफ दिस पर्ल बंचेस में मैंने सारी L'Oreal पर्ल यूज़ किए हैं. सो आई थॉट मुझे इसको प्लेन नहीं रखना चाहिए. सो दिस इज़ अप टू यू दैट हाउ यू आर क्रिएटिव, हाउ यू आर थिंकिंग ऑफ योर प्रोडक्ट कि आप उसको कैसे देख रहे हैं. बिकॉज क्या होता है ना, इट्स वेरी ईजी टू सेल योर प्रोडक्ट कि वो खाली नहीं दिखना चाहिए. आप जिस तरीके से प्राइस डिसाइड कर रहे हो वो इतना लगना भी चाहिए. तो बहुत हो गई बातें. Now I will attach this is Urdu coin. You can see the detailing of Urdu. एंड ऑल्सो प्लीज़ एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको कि ये जो कॉइन्स हैं वो थोड़े से हैवी हैं. सो आई एम यूजिंग 4 टाइम थ्रेड. यू कैन सी द थिकनेस ऑफ थ्रेड. ये 4 टाइम रिपीट किया हुआ थ्रेड है. सो क्या है वो ख़राब नहीं हो, अगर कस्टमर के पास पहुँचे तो वो टूटना नहीं चाहिए. इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना चाहिए. सो आई विल शेयर द
क्वांटिटी ऑफ दिस कॉइन यू कैन टेक 100 to 50 ग्राम। इस 4 ईयरिंग को बनाने में 100 ग्राम लगेंगे। आई मीन 4 ईयरिंग, नॉट अ 4 पेयर। ओके, मतलब 2 पेयर को बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे 100 ग्राम उर्दू कॉइन्स। सो या don't cut the thread because it will be continue. So now I will attach the tabiz because this is the very popular now, I'm telling you guys. And so this is the very easy to stitch this tabiz, and don't insert the wire in every hole. So you can stitch very separately. आपको separate ही stitch करना है इसको। यू कैन सी। सो क्या होगा ना, इससे जो थ्रेड होंगे ना वो विजिबल नहीं होंगे। सो आपको पता चल गया कि इसको और फिनिशिंग से कैसे बना सकते हैं। या सो उसको एंड से लॉक करना है, सो इट डजंट ओपन लेटर, दैट्स वाई। सो नाउ आई विल अटैच स्टर्ड पार्ट। सो दिस इज़ द फैब्रिक बेस, यू कैन सी। सो हाउ आई विल अटैच, यूज स्विंग थ्रेड एंड यू कैन सी द थिकनेस ऑफ थ्रेड। मैंने इसको 4 टाइम रिपीट किया है। सो एक्चुअली क्या है ना, ये बहुत हैवी है। सो दिस इज़ द मेन पर्पस कि मुझे थ्रेड थोड़ा सा थिक लेना पड़ा। दिस इज़ द स्विंग थ्रेड, नॉर्मल स्विंग थ्रेड। मैंने बस इसका 4 लेयर किया है, दैट्स इट। दिस इज़ द वेरी इजी। सो दिस इज़ द प्रॉपर वे टू स्टिच दिस ताबीज बीड्स टू द फैब्रिक बेस स्टड। एंड प्लीज़ लॉक प्रॉपरली बिकॉज इस पर काफ़ी हैवी नीचे ये जो पेंडेंट है वो काफ़ी हैवी है। सो टूटने के काफ़ी चांसेस हैं। सो मेक श्योर ये अच्छे से लॉक होना चाहिए। सो दीज 2 बेस इज़ रेडी। सो अभी हम इसकी बैक फिनिशिंग करेंगे एंड आई एम टेलिंग यू माई हैक। सो हम सबसे पहले स्टड हेड पिन लगा देते हैं, उसके बाद में मैं मेरा हैक जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी, मेरा जुगाड़ आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या जुगाड़ करती हूँ ईयरिंग में जब मेरे पास प्रॉपर मटेरियल नहीं होता है। एंड आई नो गाइज यू विल लव इट। सो बैक फिनिशिंग के लिए यू कैन सी दिस इज़ द वैक्स स्ट्राइप, आई एम टेलिंग यू ये वैक्स स्ट्राइप है। एक्चुअली मुझे क्या होता है ना कि नहीं पसंद आता है वो फैब्रिक कैनवास, और उसमें क्या है थ्रेड भी फ्रे हो जाते हैं। सो इसीलिए मुझे ये वैक्स स्ट्राइप ना बहुत यूज़फुल लगता है। इसका जो प्राइस है इतना नहीं होता है, बहुत चीपेस्ट प्राइस में ये मार्केट में मिलता है एंड ये हर एक लड़की के पास होता है। सो है ना ये आइडिया यूज़फुल, और इसको स्टिक करना बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ईजी है। आई एम सॉरी। एंड या दिस इज़ द माई सीक्रेट आई कैन से, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। एंड प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको ये मेरा हैक कैसा लगा और ये मेरा जुगाड़ जो मैं आपके साथ में आज शेयर किया है। एंड ये थोड़ा सा प्रोफेशनल भी लगता है, इसमें लगता है कि क्या मटेरियल यूज़ किया है, उसको स्टिक करना भी बहुत ईजी है। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू आर मेकिंग योर ईयरिंग सेलिंग पर्पस। सो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, आई एम टेलिंग यू। सो बस अब दोनों कट करना है एंड मेक श्योर इसको वेस्ट नहीं करना है, आपको जहाँ से मिले उतना शेप कट करना है। यस, एंड वन मोर थिंग, यूज़ दिस कटर, दिस इज़ द वेरी यूज़फुल कटर टू कट द फैब्रिक। बहुत ही ईजीली कट हो जाता है इसमें एंड थ्रेड भी बहुत ईजीली कट हो जाते हैं। सो यूज़ दिस। So this is the proper way for back finishing if you want to complete this earring very easily. So ये है, एंड मैंने सेकंड मेथड मेरे बहुत सारे वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है कि आप इसमें फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आपके पास में ये नहीं है देन यू हैव ओनली वन चॉइस, देन बैक स्टिचिंग। यूज़ सेम फैब्रिक, जैसा कॉटन आप फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं आपके ईयरिंग के लिए। एंड ग्लू इज़ वेरी हॉट, दैट्स वाई डोंट यूज़ योर हैंड, योर फिंगर, use some tools, use scissor, whatever you want to use it. Okay, so this beautiful earrings ready. You can see the beauty of this earring. This is so pretty guys, and trust me, this is a very easy to make this earring. And so if you are making, then please don't forget to leave your favorite and beautiful comments. So yeah, I'm so excited to wear this earring. So thank you so much for like, share and subscribe to my channel. Bye bye, मिलते हैं next video में।